So next is the question number 6. Explain circumstances leading to acid rain. How does acid rain affect us? So this question is very important and also a conceptual based question है. अगर आपको concept clear होगा then you can easily answer. सो यहाँ पे ये क्वेश्चन डिवाइडेड है आपका टू पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट में आपको बोलना है क्या क्या सर्कमस्टेंसेस की वजह से एसिड रेन होता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड पार्ट में आपको बोलना है एसिड रेन हमें कैसे अफेक्ट करता है, हाउ इट इज़ हार्मफुल फॉर अस. When harmful gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide react with water vapor which is present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid, the acids drop down with rain making the rain acidic, and this is called acid rain. So what actually happens? Industries produce harmful gases like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and these gases react with water vapor which is present in the air and किसका formation हो जाता है? Nitric acid and sulfuric acid, and these acids fall on the earth along with rain making it acidic. So इसी को बोला जाता है acid rain. So this is the first part. And second part देखो. So how does acid rain affect us? Acid rain causes skin irritation, inhibits germination of plants, causes corrosion to bridges and buildings. It changes the fertility of the soil, destroys plants and aquatic life. So how is acid rain harmful for us? जैसे पॉइंट वाइज देखेंगे. फर्स्ट है आपका इट कॉजेज स्किन इरिटेशन, यानी स्किन में इरिटेशन होता है ड्यू टू एसिड रेन. एंड इनहिबिट्स जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का क्या होता है, जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देता है. कॉजेज करोशन टू ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स देन ब्रिजेस, इसको क्या होता है, ख़राब हो जाता है ड्यू टू एसिड रेन. सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो चेंज हो जाता है. दैन इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज प्लांट्स एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ. एंड इट ऑल्सो मेक फूड ग्रेन्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स अनफिट फॉर कंजम्पशन. ये जस्ट मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बोला. तो ये क्या हमने देखा कि सेकेंड पार्ट में हाउ इज़ एसिड रेन हार्मफुल फॉर अस. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस. सो उसके पहले आपको ग्रीन हाउस गैस क्या है वो आपको जानना पड़ेगा. सो व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमोसफेयर. दीज आर द गैसेस कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी अर्थ का जो हीट है उसको ट्रैप कर लेते. एंड इस पे जो मेन कौन कंट्रीब्यूट करता है? CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 इज द मेन ग्रीन हाउस गैस एमिटेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज. सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड. जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया था CO2 इज़ अ ग्रीन हाउस गैस. CO2 की वजह से क्या होता है, CO2 इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस एक्चुअली बिकॉज इट ट्रैप्स द हीट. एंड इससे क्या होता है, इट लेड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. सेकेंड इज योर सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस क्योंकि CO2 then sulfur dioxide they are classified under greenhouse gases. This is because their accumulation leads to the warming of the atmosphere due to greenhouse effect. Okay, next is your methane. मीथेन इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस. तो हमने क्या कह देगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी तीनों ही ग्रीन हाउस गैस है. तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर नाइट्रोजन. Nitrogen is not a greenhouse gas. So the correct option is your option number D. So now let's move on to next question. Describe the greenhouse effect in your own words. आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में लिखना है. Greenhouse effect is a process by which solar radiation is absorbed by greenhouse gases and the temperature of Earth atmosphere is increased. These increase in the temperature of the surrounding is responsible for global warming. Gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, water vapor, etc. trap heat radiation and are called greenhouse gases. Greenhouse gases are often used for growing flowers, vegetables and plants mainly in cold region. Now, because of increasing concentration of greenhouse gases in our environment is adversely affecting the climate. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर इस टर्म को एकदम सिंप्लीफाई कर दे तो व्हाट डज इट मीन, द वार्मिंग ऑफ द अर्थ्स एटमोसफेयर, यानी अर्थ का जो एटमोसफेयर है
यानी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाना ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ सन्स हीट रेज बाय CO2। CO2 दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है, मेन है ग्रीन हाउस गैस। इसके वजह से क्या होता है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो वार्म अप हो जाता है। देखो, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है एंड नेगेटिव साइड भी है, दैट इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव क्या है, द वार्मिंग ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इससे क्या होता है, अर्थ का जो वार्मथ है वो बना रहता है एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो जाता तो एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं था। जैसे देखो, आपको सेकंड पैरा में लिखा हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेज आर ऑफन यूज फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स देन वेजिटेबल्स प्लांट्स। ये मेनली कहाँ पे होता है, कोल्ड रीजन पे ये अप्लाई किया जाता है। बट द प्रॉब्लम arises when the amount of CO2 in the atmosphere increases too much, which leads to the excessive heating of Earth's atmosphere. एंड ड्यू टू दिस रीज़न क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट में एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 9। प्रिपेयर ए ब्रीफ स्पीच ऑन ग्लोबल वार्मिंग। यू हैव टू डिलीवर द स्पीच इन योर क्लास। सो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, उसके ऊपर आपको क्या करना है, ब्रीफ स्पीच प्रिपेयर करना है एंड आपको वो स्पीच क्लास पे डिलीवर करना है। ओके। Continuous increase in temperature of the earth due to increased level of greenhouse gases is known as global warming. Global warming is one of the biggest concern worldwide. Scientists believe climate shifting, melting of glaciers, sudden flood in coastal areas are due to global warming. The Kyoto Protocol is one such agreement made among the countries to reduce emissions of greenhouse gases. Small contribution on our part can make a huge difference in the state of the environment. We can plant trees and nurture the ones already present in the neighborhood. So global warming is actually a very serious threat to earth। यानी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो जब इंक्रीज होने लग जाता है, दैट इज कंटिन्यूस जब इंक्रीज होने लग जाता है, देन उसको क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। And how it is caused? It is caused by the excessive heat which is trapped by the greenhouse gases, mainly like CO2, that is your carbon dioxide। सो ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट भी होता है, जैसे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर जैसे सपोज लाइक कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ये सब क्या है, मेजर रीजन्स है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। फिर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, क्लाइमेट शिफ्टिंग, सडन फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज, दे ऑल आर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। So, how can we control global warming? Even a small contribution from our side can make a huge difference. That is, to make India a pollution free and nature wealthy by encouraging everyone to plant at least one tree and adopt this in his life. So, next is a question number 10. Describe the threat to the beauty of the Taj Mahal. सो ताजमहल का ब्यूटी को किस किस चीज़ों से थ्रेट है, किस किस चीज़ों से खतरा है, वो आपको बताना है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एसिड रेन टेक प्लेस। एसिड रेन corrodes the marble of the monument. The phenomenon is also called marble cancer. Suspended particulate matter such as the soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards yellowing of the marble। यानी पहले ताजमहल का कैसा कलर था, वाइट कलर, वो धीरे धीरे किस पे ट्रांसफॉर्म हो गया, इनटू येलो कलर, एंड दिस इज ड्यू टू एसिड रेन। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एसिड रेन कब होता है। इट हैपन्स ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। एंड हमें पता है ताजमहल किसका बना है, ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल। देन ये जो एसिड रेन है, व्हेन इट फॉल्स ऑन द मॉन्यूमेंट विच इज मेड अप ऑफ मार्बल, दे रिएक्ट विथ मार्बल, और इससे क्या होता है, एक पाउडरी फॉर्म सब्सटेंस बन जाता है जो जब रेन उस पर गिरता है इट सिंपली वॉशेस अवे। एंड इसी को क्या बोला गया है, मार्बल कैंसर। दैट इज, इस फेनोमेनन को मार्बल कैंसर भी बोला जाता है।
बिकॉज acid rain simply corrodes the marble of the monument. आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल भी गिवन था, जैसे जो सूट पार्टिकल्स है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मथुरा ऑयल रिफाइनरी विच इज़ लोकेटेड नियर आगरा हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द येलोइंग ऑफ द मार्बल ऑफ ताजमहल. सो यहाँ पे जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा बिफोर एंड आफ्टर इमेज. आफ्टर इमेज में कैसा हो चुका है, येलो कलर का पूरा हो चुका है ताजमहल, जिसका ब्यूटी धीरे धीरे खराब हो जा रहा है ड्यू टू एसिड रेन. So next is a question number 11. Why does the increased level of nutrients in the water affect the survival of aquatic organism? अगर न्यूट्रिएंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए वाटर पे, तो ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे अफेक्ट होता है, कैसे वो उनके लिए हार्मफुल है, वो आपको बताना है. Excessive quantities of chemicals like fertilizers, weedicides, pesticides, etc., washed from the fields enter into ponds. These act as nutrients for algae to flourish. Once these algae die, they serve as food for decomposers like bacteria, and in this process a lot of oxygen in these ponds get used up. This results in a decrease in the oxygen level which kills aquatic organism. अगर न्यूट्रिएंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा वाटर में, देन इट लेड्स टू मोर ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड प्लांट्स इनसाइड द वाटर. एंड जब ये एल्गीज मर जाते, दैट इज़ व्हेन दे डाई, व्हाट हैपन्स, दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स. जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले लाइक बैक्टीरिया, एंड इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा यूज्ड अप हो जाता है, and this results in a decrease in the oxygen level which is harmful for the survival of other organisms. So I hope it's clear. So students, this was the last chapter of your class 8 science. Hope you all studied well. All the best for your forthcoming exam. Put your best efforts and earn your success.